Ever cared for everyone, but forgot to care for yourself? Have you ever helped everyone around you, but when you needed help, no one came? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सबकी फिक्र की मगर खुद को भूल गए? क्या आपने सबकी मदद की मगर जब आपको ज़रूरत पड़ी तो कोई आपके पास ना आया? This is the story of a kind man who gave love to everyone, but forgot to give love to himself. ये एक ऐसे मेहरबान इंसान की कहानी है जिसने सबको मोहब्बत दी मगर खुद को मोहब्बत देना भूल गया। And when his heart finally broke, he learned the most powerful lesson of his life. और जब उसका दिल टूटा तो उसे ज़िंदगी का सबसे ताकतवर सबक मिला। Once upon a time, in a small, peaceful village surrounded by green fields and tall trees, lived a man named Arif. Arif was loved by everyone. He was not rich or famous, but he had the biggest heart in the whole village. एक ज़माने की बात है, सरसब्ज खेतों और ऊंचे दरख्तों से घिरे एक पुरसकून गांव में आरिफ नाम का एक आदमी रहता था। आरिफ को पूरे गांव में हर कोई चाहता था। वो ना अमीर था और ना मशहूर, मगर उसका दिल पूरे गांव से सबसे बड़ा था। If someone's cow was lost, Arif helped find it. If a roof was leaking, Arif fixed it. If someone was hungry, he shared his food, even when he had very little. The villagers always said, Arif is the heart of this village. अगर किसी की गाय गुम हो जाती तो आरिफ उसे ढूंढने में मदद करता। अगर किसी की छत टपकती तो आरिफ उसे ठीक कर देता। अगर कोई भूखा होता तो वो अपना थोड़ा सा खाना भी बांट देता। लोग कहते थे आरिफ का दिल बहुत बड़ा है और आरिफ इस गांव का दिल है। But no one knew that Arif himself was tired and lonely inside. मगर कोई नहीं जानता था कि आरिफ खुद अंदर से थका हुआ और तन्हा था। Every morning before eating, Arif carried water to the old widow Amina. Then he helped his neighbor fix the fence. After that, he worked in the fields until sunset. When he returned home, his small house looked broken. The roof needed repair, the walls were cracked, and the floor was full of dust. He sighed and said softly, I'll fix it tomorrow. But that tomorrow never came. हर सुबह खाना खाने से पहले वो बेवा खातून आमिना के लिए पानी ले जाता। फिर वो अपने पड़ोसी की बाड़ ठीक करता। उसके बाद वो खेतों में सूरज डूबने तक काम करता। जब वो घर लौटता उसका छोटा सा घर टूटा हुआ दिखाई देता। छत मुरम्मत मांगती, दीवारें फटी हुई थीं और फर्श पर धूल जमी हुई थी। वो आह भरता और कहता कल ठीक कर लूँगा, मगर वो कल कभी नहीं आया। One evening, a young boy came running. Uncle Arif, my father's ox fell into the pit. Please come. Without thinking, Arif ran to help. He pulled and pushed with all his strength until the ox was safe. Everyone cheered for him. But that night, while walking home, Arif felt dizzy. His legs were weak and his heart was heavy. He reached his door and collapsed. For 2 days, Arif lay weak and sick inside his house. He waited, thinking someone would come to check on him. Maybe Amina, maybe the neighbors. But no one came. एक शाम एक लड़का दौड़ता हुआ आया। चाचा आरिफ, मेरे अब्बा का बैल गड्ढे में गिर गया है, जल्दी चलें। बगैर सोचे समझे आरिफ फौरन मदद के लिए भाग खड़ा हुआ। उसने पूरी जान लगाकर बैल को बाहर निकाला। लोग खुश होकर उसकी तारीफ करने लगे। मगर उस रात घर जाते हुए आरिफ को चक्कर आने लगे। टांगें कमज़ोर थीं, दिल भारी था।
दरवाजे तक पहुंचकर वो गिर पड़ा। 2 दिन तक आरिफ कमज़ोर और बीमार अपने घर में पड़ा रहा। वो इंतज़ार करता रहा कि कोई पूछने आएगा, शायद आमिना, शायद पड़ोसी, मगर कोई नहीं आया। Everyone thought Arif must be busy helping someone else. No one knew he needed help this time. As he looked at the roof above him, he whispered, I gave my heart to everyone, but no one is here when I need them. Tears rolled down his cheeks. सब यही सोचते रहे कि आरिफ तो किसी की मदद में मसरूफ़ होगा। किसी को खबर ना थी कि उस बार मदद उसे खुद चाहिए थी। वो छत की जानिब देखकर आहिस्ता से बोला, मैंने अपना दिल सबको दे दिया, मगर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास कोई नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। On the third day, a monk came to the village. He saw Arif lying near his door, tired and pale. The monk gave him water and sat beside him. He asked gently, Son, why are you here all alone? Arif smiled weakly and said, Because I was too busy helping everyone else. I forgot to take care of myself. The monk looked at him kindly and said, My child, you cannot light others' lamps. तीसरे दिन एक राहिब गांव में आया। उसने आरिफ को दरवाजे के पास थका और पीला पड़ा हुआ देखा। उसने उसे पानी पिलाया और करीब बैठ गया। राहिब ने नरमी से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों पड़े हो? आरिफ कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि मैं सबकी मदद करता रहा और अपने आप का ख्याल रखना भूल गया। राहिब ने मोहब्बत से कहा, बेटा दूसरों के चिराग उस वक्त तक नहीं जलाए जा सकते जब तक तुम्हारी अपनी लो बुझी ना हो। If your own flame is gone. Arif listened quietly. The monk continued, Love is a beautiful thing, but it must start with you. You cannot pour water for others if your own cup is empty. Those words touched Arif's heart deeply. राहिब ने मोहब्बत से कहा, बेटा दूसरों के चिराग उस वक्त तक नहीं जलाए जा सकते जब तक तुम्हारी अपनी लो बुझी ना हो। मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, मगर उसकी शुरुआत खुद से होती है। अगर तुम्हारा अपना प्याला खाली है तो तुम दूसरों को पानी कैसे दे सकते हो? उसकी बातें आरिफ के दिल में उतर गईं। The next morning, Arif stood up slowly. His body was weak, but his mind felt new. For the first time, he decided to care for himself. He cleaned his house. He fixed his broken roof. He planted flowers outside his door. And every evening, he sat near the river, watching the sunset, something he never had time to do before. People began to whisper, Arif has changed. He doesn't help like before. अगली सुबह आरिफ आहिस्ता से खड़ा हुआ। जिस्म कमज़ोर था, मगर दिल हल्का और नया लगा। पहली बार उसने खुद का ख्याल रखने का फ़ैसला किया। उसने अपना घर साफ़ किया, टूटा हुआ छत ठीक किया, दरवाजे के बाहर फूल लगाए और हर शाम दरिया के किनारे बैठकर सूरज डूबते देखता। वो लम्हा जिसके लिए कभी वक्त नहीं निकाला था। लोग सरगोशियाँ करने लगे, आरिफ बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले की तरह लोगों की मदद भी नहीं करता है। But Arif just smiled and said, I am still helping. I'm just starting with myself. Days turned into weeks. Arif's face looked brighter, his steps stronger. When someone came asking for help, he didn't always say yes. Sometimes he said, Let me finish my work first. मगर आरिफ मुस्कुरा कर कहता, मैं अब भी मदद करता हूँ, बस शुरुआत खुद से कर रहा हूँ। हफ्ते गुजर गए, आरिफ का चेहरा खिलने लगा, कदम मजबूत हो गए। अब अगर कोई मदद मांगता तो वो हमेशा हाँ नहीं कहता। कभी कहता,
पहले अपना काम पूरा कर लूं, फिर आऊंगा। Then I will come. At first, people didn't understand, but soon they saw the truth. Arif was happier, more peaceful, and still kind, but now शुरू में लोगों ने समझा नहीं, मगर जल्द ही उन्हें हकीकत नजर आ गई। आरिफ अब ज्यादा खुश, ज्यादा मुतमिन और पहले से भी ज्यादा मजबूत था। stronger. His balance taught everyone in the village a quiet lesson. One evening, Amina visited Arif with a smile. She said, "You've taught us something new, Arif. We used to think love meant giving everything away. But now we know we must care for ourselves too." उसके नए तवाज़ुन ने पूरे गांव को खामोशी से एक सबक सिखाया। एक शाम आमिना मुस्कुराती हुई उसके पास आई। उसने कहा, आरिफ, तुमने हमें नया सबक दिया है। हम समझते थे कि मोहब्बत का मतलब है सब कुछ दे देना, मगर अब हम जानते हैं कि खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। Arif smiled and replied, "When you love yourself, your love for others becomes pure and full." The whole village slowly changed. People started helping each other, but also taking care of their own hearts and homes. The village became more peaceful than ever before. As the sun set one evening, Arif sat by the quiet river. The orange light reflected on the water. He closed his eyes and whispered, "Now I understand. Loving yourself first isn't selfish. It's the beginning of real love. Remember, you can't help others if your heart is empty. You can't love anyone deeply if you don't love yourself first. Take time to rest. Take time to heal. Take time to love yourself because the world needs your light, not your pain." आरिफ मुस्कुराया और नरमी से जवाब दिया, जब तुम खुद को मोहब्बत देते हो, तभी दूसरों को दिया जाने वाला प्यार पाकीज़ा और भरपूर होता है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे, मगर अपने दिल और घरों का ख्याल भी रखते थे। यूं गांव पहले से ज़्यादा पुरसकून बन गया। एक शाम आरिफ दरिया के किनारे बैठा था। सूरज की नारंगी रोशनी पानी में झलक रही थी। उसने आंखें बंद की और कहा, अब मैं समझ गया हूँ, खुद से मोहब्बत करना खुद गर्जी नहीं, ये असल मोहब्बत की शुरुआत है। याद रखो, तुम दूसरों की मदद तब ही कर सकते हो जब तुम्हारा दिल भरा हो। तुम किसी से सच्ची मोहब्बत तब ही कर सकते हो जब तुम खुद से मोहब्बत करना सीखो। आराम करो, खुद को वक्त दो, अपने दिल को ठीक होने दो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रोशनी चाहिए, तुम्हारा दर्द नहीं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें पहले अपनी ज़ात का ख्याल रखना चाहिए। हमें माली और जिस्मानी तौर पर मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए और माली तौर पे भी मजबूत होना चाहिए, ताकि हम दूसरों की मदद भी अच्छे तरीके से कर सकें। हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और हमें दूसरों की तकलीफ़ का एहसास भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ात पे, अपने घर पे तवज्जो देनी चाहिए जहाँ पे हम रहते हैं, और अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। मैंने इस इंग्लिश कहानी को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।